فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمدللہ ماہ مبارک رمضان آپ کے اور ہمارے درمیان دوبارہ بڑے آب و تاب کے ساتھ اور بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ تجلیل ہوا ہے، وہ رونق طریقے سے آیا ہے، اور اپنی قسمت پر ناز کریں، شکریہ ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے حیات دیا اور اتنی مدت تک زندہ رہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ماہ مبارک ہمارے درمیان میں آ گیا۔ یقیناً اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ رکھا ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، مغفرت بھی ہے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ توبہ کرتے رہیں۔ اس مہینے میں کار خیر کا انداز بڑھا دیا جاتا ہے۔ یوں تو سالوں بھر ہم کو کار خیر کرنا ہے، اچھے کام کرنے ہیں، لیکن اس مہینے میں ہر بات کی تاکید بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہاں تک کہ عام طور پر اب اگر آپ سوئے تو وہ سونے کے لیے مباح قرار دیا گیا ہے، لیکن اس میں فرمایا رسول اللہ نے کہ نومکم عبادہ، تمہارا سو جانا بھی اس مہینے میں عبادت ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اور تمہارا ایک ایک سانس لینا تسبیح کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور روزے کے عالم میں جو منہ سے بو نکلتی ہے، یقیناً عام طور پر لوگوں کو بری لگتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ مسک و عنبر سے زیادہ خوشبودار مانی گئی۔ روزے دار کی جو بو نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو یہ رکھا ہے، رسول اللہ نے بتایا ہے کہ نومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں تمہارا سو جانا بھی عبادت ہے۔ آخر اس کی علت کیا ہے کہ ہمیشہ ہمارے پاس تاکید ہے کہ زیادہ سے زیادہ بیدار رہو، زیادہ سے زیادہ محنت کرتے رہو، مشقت کرتے رہو، آگے بڑھتے رہو، اور یہاں تک کہ حدیث میں ویل لمن صابان، اس کے اوپر افسوس ہے جس کا 2 دن برابر ہو جائے، یعنی آج جو ہمارا گزرا ہے دوسرا دن اور بہتر گزرے، کمائی کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، اطاعت کے لحاظ سے، آداب کے لحاظ سے، بزرگی کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، صبر کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے ہمارا ایک دن بعد والا ترقی میں جانا چاہیے۔ اس لیے کہ آدمی جب سیڑھی چڑھتا ہے تو ہر سیکنڈ کے بعد پتہ چلا کہ ایک سیڑھی پار کر جاتا ہے، یعنی بلندی پر جانے کے لیے پتہ چلا کہ اگر برابر پر آ تو نہیں چڑھ پائے گا۔ اسی طرح سے ہمارا 2 دن برابر نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم نے جو کیا ہے دوسرے دن اتنا اچھا کرے کہ مولا کی نظر میں ہو جائے کہ ویل لمن صابان نہ ہونے پائے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس کا 2 دن برابر ہو جائے اس کے اوپر افسوس ہے، یعنی کسی بھی اعتبار سے ہم اپنے آپ کو ترقی پر لے کر کے آئے۔ تو آخر وجہ کیا ہے، پہلے اس کی علت بیان کر دی جائے کہ ایسے سال بھر تاکید کی گئی کہ زیادہ نہ سو، زیادہ آرام کرنا اچھا نہیں ہے، استراحت کرنا اچھا نہیں ہے، سونا اچھا نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں سونے کی بھی عبادت ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوئے۔ اس لیے کہ جب آدمی سوتا ہے تو سونے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گویا گھر کے اندر ایک کونے میں ایک طرف ہے، اپنے آپ کو دنیا سے بچائے ہوئے ہے، اس کا پیر بھی بچا ہوا ہے، اس کا ہاتھ بھی بچا ہوا ہے، اس کی فکر بھی بچی ہوئی ہے، اس کی آنکھ بھی بچی ہوئی ہے، اس کی زبان بھی بچی ہوئی ہے، اس کی اچھی جو سوچ ہوتی ہے وہ بھی بچی ہوئی ہے۔ یعنی جب آدمی سوچ رہا ہے، سو رہا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ روزہ رکھو تو ہر لحاظ سے روزہ رکھو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، کانوں کا بھی روزہ ہو، ہاتھ کا بھی روزہ ہو، شکم کا بھی روزہ ہو۔ یہ اگر دیکھا جائے تو صرف سونے کے عالم میں ہے کہ جب آدمی سوئے گا تو اس کا ہر چیز پاک رہے گا، یعنی ہاتھ نے بھی روزہ رکھا ہے، پیر نے بھی روزہ رکھا، لہذا کہہ دیا تمہارا سونا بھی عبادت ہے، تم سو نہیں رہے ہو بلکہ اپنی حفاظت کر رہے ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ماشاءاللہ عرب وغیرہ میں تو ایسا انتظام کیا گیا ہے، مثلا ایران ہے، سعودی عرب ہے، کہ وہاں پر
कमाने के टाइमिंग को बदल दिया जाता है। मसलन दिन वाली जॉब रात में हो जाती है, आराम से जाइए आप रोज़ा खोल करके 8 घंटे की है 6 घंटे की ड्यूटी करके आ जाइए, या 7 घंटे सहरी के टाइम छोड़ देंगे, आइए सहरी कीजिए। तो पता चला कि बहुत सी जगहों पर ऐसा इंतज़ाम है। लेकिन जो अपने हाथ में अपनी रोज़ी रखे हुए यानी अपनी दुकान है या अपनी तिजारत है तो हमारा मकसद क्या है, हमारे यानी अपने कमाने के बारे में गौर करें कि आया कमाना हमारा मकसद है या कोई और चीज़ हमारा मकसद है। तो देखा जाए तो ये जो है यानी जो इंसान कमा रहा है इसके ज़रिए से वो अपना वाजिब अदा करना चाहता है, यानी मकसद नहीं है। तो उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे उसने अपने गाड़ी में तेल भरवाया है, तो गाड़ी में तेल भरवाना मकसद नहीं, मंजिल तक पहुंचना मकसद है। इसी तरह से इंसान के हयात का मकसद ये है कि अपनी मंजिल तक पहुँचे, क़यामत तक पहुँचे, ना कि पूरा टाइम दुकान के अंदर दे दे, पूरा टाइम तिजारत के अंदर दे दे, पूरा टाइम अपना सिर्फ जो है कस्बोकार में दे दे। नहीं, हर चीज़ के लिए एक वक्त मुकर्रर किया गया है। ठीक है, 11 महीना बहुत मेहनत किया, अब अल्लाह ताला ने सलाहियत दिया है, ताकत दिया है, हुनर दिया है, आपको जो है ऐसी चीज़ दी है कि आपके हाथ में है, आपकी दुकान आपके हाथ में है, तिजारत आपके हाथ में है, आप ऐसा काम कर रहे हैं तो रोज़े का ख्याल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में इस्तिराहत करें। बकिया जो मौका मिला उसमें खूब कमाइए, खूब आराम से जो है कीजिए, अल्लाह ताला ने नहीं रोका है। लेकिन रोज़े के आलम में ज़्यादातर ये कोशिश कीजिए कि पूरा बदन आपका रोज़ेदार रहे, और उसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमा दिया कि इसमें सोना भी इबादत है, यानी अपने आप को बचाए रहो, ना मार्केट में जाओ, ना दुकान पर जाओ, बाहर निकलोगे खुदा न खास्ता कहीं से कुछ न कुछ रोज़े पर असर हो जाएगा। और ये इतना ज़्यादा है कि हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन मानवी तौर पर दिखाई, जैसे कि 2 रिवायत हमारे सामने। एक रिवायत है रसूलुल्लाह की कि जब बुढ़िया के बारे में पता चला कि अपने पड़ोस को बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रही है और बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रही है, तो अभी रोज़ा खोलने का टाइम नहीं हुआ था। आपने उसको बुलवाया, हाजिर किया, आई, और आने के बाद पानी पेश कर दिया कि लो तो पानी पी लो। तो हाथ जोड़ने कांपने लगे कि हुजूर हम तो रोज़े से हैं। तो आपने फरमाया कि रोज़ा सिर्फ भूख में रहने का नाम नहीं है, रोज़ा यानी ज़बान पर काबू, रोज़ा यानी ज़हन पर काबू, रोज़ा यानी पूरे बदन पर काबू। तो रोज़े का मतलब है कि आधा और जवारे से हमारे पता चले कि हम रोज़े से एक एक चीज़ को अपने आप को बचाएं, यानी फ़िक्र भी करें तो बहुत अच्छी फ़िक्र करें कि हम रोज़े के आलम में हैं। खुदा न खास्ता कोई फ़िक्र उल्टी सीधी नहीं होना चाहिए, हमारी फ़िक्र भी सही होना चाहिए, हमारा हाथ भी सही चलना चाहिए, हमारा पैर भी सही चलना चाहिए। इसी तरह से मासूम के लिए है, चूँकि वो मानवियत को जानते हैं, आगाह है कि मानवियत और हकीकत में क्या है, हम ज़ाहिरी तौर पर नहीं जानते। एक साहब ने यानी उनकी बेटी ने जो है किसी की ग़ीबत किया और उन्होंने जाकर के मासूम से शिकायत कर दिया कि हुजूर ऐसे ऐसे रोज़े के आलम में मेरी बेटी ने फला की शिकायत किया है और ग़ीबत किया है। तो आपने कहा हाजिर करो। हाजिर करने के बाद आपने इशारा किया उससे कि अपने हाथ से तुम इशारा करो गले में और देखो क्या निकलता है। अब उसने जो उल्टी की, हमारे पास यानी जानबूझ करके उल्टी करने से रोज़ा बातिल हो जाता है। इसका मतलब है कि रोज़ा खोलने का टाइम था तब आपने हाजिर किया, चूँकि जानबूझ करके तय करना इससे रोज़ा चला जाता। अगर कोई ऐसे ही एक बैग आ गया तो फिर अंदर न जाने पाए, जो आ गया कुल्ली कर ले, पेशाब कर ले, उसका रोज़ा बचा रहेगा। लेकिन खुदा न खास्ता कुछ ऐसा किया है या वो रात में कुछ ऐसा खा लिया जिससे मालूम है कि ये चीज़ खाने से उल्टी आ जाती है, तब भी जानबूझ करके पेट भर के खा लिया तो वो आमदन में आ जाएगा। लिहाजा जब इमाम ने उससे इशारा किया कि अपनी उंगली डालो हलक में, उस लड़की ने जो उंगली जो है डाली है तो देखा छोटी छोटी बोटियाँ निकल रही हैं। तब इमाम ने कहा कि अगर मैं ऐसे बताता तो तुम्हारे समझ में ना आता। देखो तुमने किसी की ग़ीबत किया है, यानी उसके बदन का गोश्त नोच करके खाया, वो निकल रहा है। ये मैं दिखाना चाहता था, इसलिए कुरान मजीद ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वालों, ला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैता फ़करिहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। ईमान लाने वालों, देखो आपस में एक दूसरे की ग़ीबत न करो। क्या तुम्हें पसंद है कि तुम ग़ीबत करके अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? तो जो कुरान ने कहा था कि जो ग़ीबत करता है गोया अपने मरे हुए भाई के बदन को नोचता है, यानी यहाँ पर एक इशारा है कि आदमी इज़्ज़तदार है, हर लिहाज से इज़्ज़त उसकी है। लेकिन अगर जगह जगह से बदन नोच लिया जाए तो जो देखेगा तो बहुत बुरा मानेगा, यहाँ से भी गड्ढा पड़ा हुआ है, वहाँ से भी गड्ढा, यानी ऐबदार हो जाता है।
इसी तरह से किसी गीबत करना, उसको ऐबदार बनाना। तो कुरान ने इशारा ये किया है कि किसी की गीबत करके उसके गोश्त को न नोचो। तो इमाम ने दिखा दिया कि देखो जो कुरान ने कहा है ये तुम्हारे दिखाई नहीं देता, लेकिन हम जानते हैं कि तुमने क्या किया है, लिहाजा तौबा करवाया, इस्तिग़फ़ार करवाया। और कुरान ने ये कह भी दिया है कि अगर तुम्हें मालूम हो जाए, पता चल जाए, तो तुम ये तौबा कर लो। यकीनन अगर तौबा कर लोगे तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है, बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। और इसमें जो गीबत करते हैं यानी ये कुरान के लिहाज से अलग है, हदीस के लिहाज से अलग बुराई है। एक उसमें बुराई ये है कि उसका सारा नेक अमल उसके खाते में चला जाए जिसकी बुराई करता है, और यानी पता चला कि उसकी अच्छाई इधर आ गई और इसकी जो अच्छाई थी सब के सब उधर चली गई। ये ऐसी बात है कि हमारे उलमाए किराम ने बाकायदा अमली तौर पर भी जाहिर किया है, अमली तौर पर बताया। कहेंगे अमली तौर पर कैसे? यानी गीबत करने के लिए कुरान ने बताया कि देखो न करो, उसका जो है ये माना है। हदीस ने समझाया कि न करो, उसकी बुराई है। उलमाए किराम ने भी अपनी ज़िंदगी में बाकायदा इसको दिखाया है करके। मतलब कैसे साबित किया है? जैसे अल्लामा मजलिसी के लिए मिलता है कि अल्लामा मजलिसी के एक साहब ने गीबत किया, आपके चाहने वाले ने सुन लिया, बहरहाल आ करके अल्लामा मजलिसी ने बता दिया कि हुजूर ऐसे ऐसे आपकी गीबत हो रही थी और फला आदमी के, हालांकि आपने रोक दिया, मना कर दिया कि हर बात आकर न बताया करो अगर कोई करे, इसलिए कि बहरहाल आलिम दीन है, बहुत से नेक भी काम कर रहे हैं और हो सकता है कि मार्केट में बैठते हैं, चूँकि बहुत बड़े ताजिर भी थे, तो कोई ऐसी बात जाहिर होती है तो लोग देख के कहीं वाह इतने बड़े अल्लामा हैं और दुनियावी तौर पे इतना बड़ा काम भी करते हैं। चूँकि अल्लामा मजलिसी बहुत अमीर थे, बहुत ज़्यादा दौलत वाले थे, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा थी, इसलिए कि तजारत भी करते थे और किताब भी लिखते थे, लिहाजा रोक तो दिया उन्होंने। लेकिन चूँकि नाम पता चल गया था किसने गीबत किया है और कौन से महल्ले से किया है, घर में गए और उसको रोका। रोकने के बाद कहा कि ठहरो, एक तबक खजूर लेकर के आए। अब खजूर को जो है सामने रख दिया, एक छोटा सा जो है रोगा लिखा, ख़त लिखा और उसका शुक्रिया अदा किया। कहा कि तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरी तरफ से तोहफ़ा कबूल कर ले कि जो काम मैंने नहीं किया बैठे बैठे वो तूने मेरे लिए करवा दिया, कि तेरी दिन भर की इबादत मेरे खाते में आ गई, बैठे बैठे इतना नफ़ा बख्श दिया कीमत करके, मैं तेरा शुक्रिया अदा कर अल्लाह। लिहाजा ये मतलब कुरान से भी, हदीस से भी, रिवायत से भी, और ये जो पेश किया इसको दिरायत कहते हैं, यानी दिखा देना किसी चीज़ को कि देखो गीबत करने की क्या बुराई है, गीबत करने के क्या नुकसानात हैं। लिहाजा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि दोनों सिलसिला है, हम 15-16 मिनट के अंदर सोचते हैं कि दोनों फ़ज़ाइल भी हो जाए, मसाइल भी हो जाए, यानी अखलाकी तौर पर भी थोड़ी सी बहस हो जाए और मसाइल के तौर पर भी थोड़ी सी बहुत बहस हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अखलाकी पहलू में ये था कि हम जो सोते हैं रोज़े में क्यों सोते हैं, उसका फ़ायदा क्या है, रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया है, और दूसरे ये कि हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन की इज़्ज़त इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा बयान किया गया है कि अगर किसी मोमिन का दिल किसी ने तोड़ दिया तो रिवायतों में यह तज़्ज़ल अर्श, गोया उसने अर्श को हिला दिया। खाने काबा से बढ़ करके एक मर्द मोमिन की इज़्ज़त है। अल्लाह लिहाजा मस्जिद में भी कोई आए तो बहुत एहतराम करे, अगर जगह नहीं है तो उसको जगह बना के दे, अगर आगे जगह है तो ऐसा इशारा करे कि आगे चले, ये इज़्ज़त है, ये एहतराम है। यानी मस्जिद में भी कोई आए तो हालांकि आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ इशारा कर दिया कि आप आगे चले जाए, इसमें भी सवाब, यानी मस्जिद का भी एहतराम है, मस्जिद में आने का भी सवाब है। इंशाअल्लाह इसी तरह से अखलाकी पहलू और थोड़ा सा फ़ज़ाइल पेश करते हुए मसले में एक मसला बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है मुसाफिरत के बारे में, सफ़र के बारे में। तो उसको याद रखें, अगर रात में इरादा करके सफ़र कर रहे हैं, मतलब रात में इरादा कर लिया कि कल हमें सफ़र करना है, तब फिर वो रोज़ा तो नहीं रख सकता, लेकिन उसका जैसे ही हद तरफ़ुस से निकल जाएगा रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने एक बैक सफ़र किया, यानी रात में इरादा नहीं था, ऐसा काम पड़ गया कि अपने हाथ निकल गया, तो फिर उस दिन का रोज़ा भी पूरा करे वो और बाद में क़ज़ा भी करे। यानी रात में जो इरादा करता है सफ़र का, उससे ये फ़ायदा हो गया इरादा करने का कि कम अज़ कम हद तरफ़ुस पर जाके खोल सकता है, यानी टूट गया, अब थोड़ा बहुत अगर खाना चाहे तो खा सकता है, वरना अगर रात में इरादा नहीं, एक बैग खड़ा हुआ और चल दिया, तो ऐसे चलने वाले को रात में इरादा नहीं था, तो अब उस दिन का रोज़ा भी पूरा करे और ईद के बाद एक क़ज़ा करे। और एक मसला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो लड़कियों की शादी हो गई है
اور वो अपने पता चला कि ससुराल चली गई, मैके चली गई है, अब वहाँ पर जो है रहने लगी है, तो अब उनसे सवाल ये किया जाए कि जो अपने वालिदैन के यहाँ आती हैं तो क्यों आती, क्या अपना वतन कबूल करती हैं? अगर वो कहेंगे हाँ हम कबूल, चूँकि ये सिस्तानी साहब ने बाकायदा फरमाया है कि एक आदमी कई वतन बना सकता है, यानी पता चला एक वतन उसका वो है जहाँ पैदा हुआ है, एक वतन वो है जहाँ पर जॉब कर रहा है, एक वतन वो है कि जहाँ पर पसंद करके अपना मकान बना लिया, मतलब पता चला यहाँ भी है लखनऊ में मकान बनवा लिया है कि ये भी हमारा वतन रहेगा, हम रिटायर्ड होंगे तो यहाँ पर रहेंगे, या अलीगढ़ में बनवा लिया है। तो ये आयतुल्लाह सिस्तानी साहब का ख़ास मसला है कि एक आदमी कई वतन बना सकता है। इस पर अरबी में आया कदिस तौतना, यानी अगर वतन कबूल करना है तब। लिहाजा आपने भी मसला पूछा तो हमने कहा कि पहले उससे पूछिए कि वो अपने वतन को कबूल करके आ रही है या ऐसे ही आ रही। बच्ची अगर आ रही है तो यही तो सोच के आ रही कि मेरा वतन है, मेरे माँ बाप का वतन है, तो पता चला कि उसका रोज़ा यहाँ पर कसर नहीं होगा। अगर एकदम छोड़ दिया, मतलब आपने शादी कर दिया इस नियत से चलिए बाहर शादी कर दिया, अब लंदन चली गई, अमेरिका चली गई, या इंडिया के किसी कोने में चली गई, अब कभी नहीं आएगी या 10-20 साल में आएगी, तो उसको नहीं माना जाएगा। लेकिन ये एक ऐसी जगह आपने शादी किया है कि बार बार आना जाना है, अपना वतन कबूल कर रही, ईद में आ गई, बकरीद में आ गई, मुहर्रम में आ गई, या ऐसे मौके पर आपने बुलाया फ़ौरन हाजिर हो गई, तो अपना वतन समझ करके आ रही। इसी तरह से और लोग हैं, ये तो लड़की की मिसाल दिया कि शादी करने के बाद आप लोग में भी थी, बहुत से लोग हैं जो चले गए यहाँ से, लेकिन यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? अपना वतन कबूल कीजिए कि हमारा वतन है, चलो यहाँ पर मुहर्रम करेंगे, चलो यहाँ पर जो है अपनी इफ्तार करेंगे। तो अगर उसने वतन कबूल कर लिया है तो फिर उसका हुक्म वतन का हुक्म है। और तीसरी बात ये कि अगर कोई अपना रोज़ा बचाना चाहता है तो जहाँ पर जा रहा है रास्ते में तो रोज़ा उसका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इक़ामा अशरा करके जा रहा है, यानी 10 दिन की नियत करके जा रहा है, तो फिर वहाँ पहुँचने के बाद रोज़ा है। चूँकि 10 दिन का इरादा कर ले तो फिर रोज़ा उसका कसर नहीं हुआ है। अब वहाँ पहुँचने के बाद रास्ते में जो 4-6 घंटा सफ़र किया उसमें कसर हो गया, लेकिन पहुँचने के बाद उसका रोज़ा सलामत रहेगा, चूँकि इक़ामा अशरा किया है, चाहे वो 10 दिन न रहे, लेकिन उसका इरादा डमाडोल है, नहीं पता चल 10 दिन की नियत कर ले उसका रोज़ा बच जाएगा। यानी उसको यकीन नहीं 8 दिन रह के आएंगे, 9 दिन रह के आएंगे, तो कम से कम 10 दिन का इरादा कर ले, जिसको अरबी में इक़ामा अशरा कहा जाता है, यानी 10 दिन की नियत कर ले। और एक मसला ये पूछा जाता है कि जो लोग बीच बीच में सफ़र करते तो याद रखें कि जिनका जो है मशगला ही सफ़र करना है उनके ऊपर न रोज़ा कसर है न नमाज कसर। मतलब कुछ लोग ऐसे हफ्ते में 3-4 दिन उनका सफ़र ही रहता है, उसूल में चले जाते हैं, या पता चला आगरा आना जाना है या अलीगढ़ आना जाना है, तो ये कसीरुल सफ़र में आ जाएंगे, यानी उनका मशगला सफ़र में। उसकी मिसाल दी गई है जैसे कोई मल्ला है, पता चला कि वो कश्ती चला रहा है तो बड़ी दूर दूर तक जो है नहर में या बहर में समंदर में चला जाता है और आ जाता है, तो वो या ड्राइवर है या जो है रेलवे का जो है चलाने वाला है, या इसी तरह से बस का ड्राइवर है, तो ऐसे लोगों का जो है सफ़र रोज़मर्रा का सफ़र, इनकी न नमाज कसर है न रोज़ा कसर है, इसको कहते हैं अरबी में कसीरुल सफ़र। इसके बावजूद भी 4-5 मसला पेश कर दिया है, अगर कोई जहन में रहे तो इंशाअल्लाह और मसले बयान किए जाएंगे। कितने किलोमीटर पर मतलब आना जाना 22 जो है 24-44 किलोमीटर है, उसके बाद मतलब आप यहाँ से निकले तो आपका जो बस अड्डा है फिरोज़ाबाद का, वहाँ तक 22 किलोमीटर हो जाता है। अलबत्ता अगर आप अपने शहर के आखिर से हिसाब करें, यानी यहाँ से सुभाष चौराहा के पास से हिसाब करें कि अजान की आवाज़ जाती है, तो थोड़ा बस अड्डे से 1 किलोमीटर आगे चले जाए आप, यानी वहाँ पर 22 किलोमीटर होगा, तो वहाँ पर जाने के बाद आपका रोज़ा कसर हो जाएगा। अलबत्ता रात से इरादा हो, रोज़ के मुसाफिर ना हो, ड्राइवर ना हो, हमेशा सफ़र करना तब। और वो भी बता दिया है कि अपना वतन अगर कोई कबूल कर रहा है तो फिर उसको जो है उसी सूरत में आना पड़ेगा जैसे वतन में आते हैं, यानी आए यहाँ पर तो ज़ोहर से पहले पहुँच जाए और जाए यहाँ से तो दोपहर के बाद जाए, ताकि उसका रोज़ा जाने में भी बच जाए और आने में भी बच जाए।